بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI کے ساتھ آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہے۔ تمام ناظرین کو، ہمارے ویورز کو نیا سال مبارک ہو 2025، اور امید کرتے ہیں کہ 2025 انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کا سال ہوگا، معاشی طاقت پاکستان بنے گا۔ اور گفتگو کریں گے ہم ریلوے کے حوالے سے، گفتگو کریں گے ہم مسافروں سے، اور ریلوے کی جو گفتہ بے صورتحال بن چکی ہے۔ حکومت ریلوے کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دے رہی، مسائل میں گری ہوئی ہے۔ ایک طرف ریلوے انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی اس کی آمدنی میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں ساتھ بتاتی کہ ان کے اخراجات میں بھی ریکارڈ اضافہ ہے، اور ان کے اخراجات جو ہیں ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں۔ 1.9 ارب کا ٹارگٹ گورنمنٹ نے دیا تھا ایک کو رواں مالی سال کے لیے 2024-25 کے لیے، اور میں شاید امید کرتا ہوں کہ شاید جون تک یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخراجات جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ جو آپ کی آمدنی ہے اس سے 50-60 ارب جب اخراجات زیادہ ہوں گے تو آپ کس طرح اپنے مسائل پہ قابو پا سکیں گے؟ نہ ریلوے کے ٹھیکیداروں کو ادائیگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، نہ جو ریٹائرڈ جو پینشنرز ہیں ان کو واجبات کی ادائیگی 2021-22 کے بعد سے نہیں ہو رہی، وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اس میں سے کئی جو بیچارے پینشنرز ہیں وفات پا چکے ہیں، اور ان کو ظاہر جمع پونجی ہوتی ہے کہ بر وقت ملیں گی، واجبات ملیں گے، اس سے کئی انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کریں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، لیکن ایسی چیزیں ممکن نظر نہیں آتی، اور اس کے لیے حکومت کو یہ نجکاری کرنے جا رہی ہے ریلوے کی۔ اس نجکاری کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن محکموں میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ TLA کے ملازمین نکال دیے گئے 2024 میں۔ ہم گفتگو کریں گے جو چیئرمین ہیں، جو مرکزی صدر ہیں پریم یونین کے، شیخ محمد انور سے۔ باقی ہم مسافروں سے گفتگو کریں گے ریزرویشن آفس میں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ریلوے کا سفر کیسا ہے، مہنگائی کی شرح کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے گا، گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں۔ یہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد انور، جو ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر ہیں، اور 2024 کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ TLA ملازمین کو نکالا گیا، ریلوے کی سیٹوں کو کم کیا گیا، اور ریلوے کی جو نجکاری ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونے جا رہا ہے 2025 میں یا نہیں، مزید جانتے ہیں شیخ محمد انور صاحب سے۔ السلام علیکم جی والسلام جی۔ شیخ صاحب، آپ ہر ایشوز جو ریلوے کا ہوتا ہے اس میں آپ راول دستہ بنتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ ریلوے کے ساتھ کیا ہوا ہے 2024 میں؟ TLA ملازمین کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، ریلوے کا کیا دیکھیں جی 2024 کا جو سال ہے یہ بڑا مایوس کن گزرا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ ریلوے مزدوروں نے شب و روز کوشش کر کے ریلوے کی ارننگ کی ایک تاریخ رقم کی، ریلوے کو ٹارگٹ ملا، ریلوے ملازمین نے کام کر کے 90 ارب کی ریکارڈ آمدن حاصل کی۔ اب ریلوے کے ملازمین کو ٹارگٹ ملا 1.9 ارب کا، اور مجھے امید ہے یہ ٹارگٹ بھی پاکستان ریلوے کے ملازمین بڑے جفاکش ہیں، یہ بھی ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ لیکن ملازمین کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ چیئرمین صاحب جو ہمارے پاکستان ریلوے کے جو چیئرمین ہیں، جنہوں نے MP1 اسکیل کا وہاں پر کنبہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں کسی بھی ادارے میں جب آپ رکھتے ہیں نا جی MP1 اسکیل کے افسر، تو ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس فیلڈ میں کوئی دنیا کے اندر کوئی نمایاں کارنامہ ادا کیا ہو۔ ہمارے تو یہاں پر کسی MNA کی سفارش پہ، کسی وزیر کی سفارش پر اتنا بڑا کنبہ اکٹھا کر لیا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان ریلوے کو نان اسینشل کیٹیگری ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ڈاک خانہ کے ملازمین کو جو ہے اسینشل کیٹیگری ڈکلیئر کیا گیا۔ بڑا شیم فل رول ہے ہماری وزارت ریلوے کا، اور میں سخت تنقید کرتا ہوں لوگوں کے اوپر کہ بجائے یہ کہ اپنے کیس کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے صحیح پلیڈ کرتے، یہ اپنا کیس ہار گئے ہیں۔ اور اب جو ایکٹ آیا ہے 2023 میں، جو کہ 1 سال ہو گیا، جس کو مکمل ہو گیا 1 سال، اب دیکھیں اس کے بعد ریلوے کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ریلوے کے اندر سے TLA ملازمین کو بردردی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ اور میں ایک اور خبر بریک کرتا ہوں کہ آج 750 لوگ ہیں انویلڈ ملازمین، ان کا کیس بھی وزارت ریلوے کو بھیجا گیا ہے فار ایکسٹینشن کے لیے۔ وہ ملازمین ہوتے ہیں جن کے والدین دوران ڈیوٹی کسی کو ہارٹ کا ایشوز ہو گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کو، اب اس سے بھی بڑی بدقسمتی دیکھیں کہ جناب اب تو PM پیکج جو یتیم بچے ہیں ان کی بھی بھرتی بند کر دی گئی ہے۔ تو جس ادارے کے اندر یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو اس ادارے میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟
یہ بتائیں 1 ارب جیسے آپ نے خود بتایا کہ 1 خرب اور 9 ارب کا یہ ٹارگٹ پورا کرنے جا رہے ہیں، نہ تو آپ کے جو پینشنرز کو واجبات مل رہے ہیں اور صورتحال آپ کے سب سامنے ہے، ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی، تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 2-3 وجوہات ہیں، ادارے حکومت کی توجہ سے چلتے ہیں۔ انڈیا نے ابھی اپنی ریلوے کے ٹریک کی مینٹیننس کے لیے $30 ارب دیے ہیں، $30 ارب، کتنی بڑی رقم دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور دیں وہاں پر اس کو پیسے 600-700 ارب دیا جاتا ہے غالباً علی صاحب۔ تو ریلوے کو کبھی سنا ہے کسی نے 200-300 ارب دیا ہوگا ریلوے کو، آپ ریلوے میں استعمال کریں؟ لیکن جتنے پیسے ہم کما رہے ہیں نا، 1 خرب اور 9 ارب کمانے کے بعد بھی ہم ریلوے کے ٹارگٹ تو اچیو ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری تو پینشن کے اندر ہی 50 ارب کے قریب چلا جاتا ہے، اتنا ہی ہمارا جناب چلا جاتا ہے اس کے اندر تنخواہ میں، پھر اس کے بعد ETC کے دیگر 4-5 ارب کے چارجز وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی چینل پر جا کے میں نے 2-3 دفعہ بات کی ہے، بڑے شکر گزار ہیں علی آپ کے کہ آپ گراس روٹ کے جرنلسٹ ہیں، آپ آتے ہیں، یہ نہیں کہ دفتر میں بیٹھ کے وہ خبر بناتے ہیں۔ ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں کے لیے کم از کم 10 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیں۔ جب تک یہ بیل آؤٹ پیکج نہیں ملے گا، یہ ریلوے کے ملازمین جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو کہ آج مر گئے ہیں، ان کی بیوائیں بھی کئی لوگ ہیں جو دھکے کھا کے اس ہیڈ کوارٹر کے چکر لگا کے دنیا سے جا چکی ہیں۔ ریلوے کی ترجیحات میں تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے ریلوے، اور ریلوے کا وزیر کوئی نہیں ہے، یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ تو آپ نے کہا جی اسینشل کیٹیگری سے نکال دیا ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کو کیس پلیٹ کرنے والے ادھر کوئی بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی وہاں پر میں نے آپ سے علی بات کی ہے کہ یہ مزدوروں کا دائرہ ہے یار۔ اگر تمہیں پریم یونین کا کوئی صدر کا رنگ کالا نظر آتا ہے تو یار گورے لے آتے ہیں یہاں پر، بھائی یونین کے ساتھ چیئرمین صاحب کو بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک آجر اور اجیر ایک پیج پر نہیں ہوتے کوئی ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کاش ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے، ہم ان کو چیئرمین صاحب کو بتاتے۔ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے پوری زندگی میں بتایا نا ریلوے میں کتنی نوکری کی ہے، انہوں نے تو ادر دین ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی ہے ساری۔ اور ایم پی جس طرح بتا رہے ہیں اسکیل کے جو افسر اکٹھے کیے ہوئے ہیں سر، وہ تو سفارشی لوگ ہیں نا، کی ترجیحات ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب پٹرول ان کو فری مل رہا ہے، کھانے پہ ہوا ان کو ہر چیز فری ہے، ان کی اس تو پتہ ہی نہیں ہے مزدور کی کیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ریلوے میں جناب MOD لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ MOD کیا ہوتی ہے؟ MOD تو ہے بھی نہیں، IRO کے اندر سے MOD نکال دی گئی ہے۔ لیکن یہ تو ریلوے کے افسران ہیں جو کہ اس میں تھے، MOD لگی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی جب حکومت نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے تو ان کے لیے کون سے ایسا قانون سازی کرنے میں تو 10 منٹ لگتے ہیں حکومت کے لیے، ہوئی نہیں پچھلے دنوں میں آپ کے ملک کے اندر۔ تو یہ میں کہوں گا کہ اگر اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا شہباز شریف صاحب، خدارہ یہ دفاعی ادارہ ہے، یہ میں بلکہ چیف آف دا آرمی سٹاف سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب یہ دفاعی ادارہ ہے، 30 کلومیٹر کے اندر ہمارا دشمن ملک ہے، آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس میں کوئی نہیں شک ہے، ہم جہاد کے جذبے سے ششار لوگ ہیں، کلمے کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ لیکن اگر یہی جو ہے ٹریک ریلوے کو دن بدن ختم کرتے جا رہے ہیں تو یہ ٹریک تو ویران ہو جائیں گے۔ اسی ٹریک کے اوپر ساری آرمی کا انحصار ہے۔ تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا، وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کروں گا، اس قومی دفاعی اور فلاحی ادارے کو جو کہ اس پاکستان کی وحدت کی علامت ہے، جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے، اس کو بیل آؤٹ پیکج دیں، اور جہاں پر آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے اس کی میجر سرجری کریں تاکہ یہ قومی ادارہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ یہ بتائیں شیخ صاحب، نجکاری ہونے دیں گے کیا آپ؟ دیکھیں جی، ہم انشاءاللہ جو ہے چند دن میں آپ کو نجکاری کے خلاف بینرز، نجکاری کے خلاف پورے ملک کے طول و عرض میں پمفلٹ اور پوسٹر نظر آئیں گے۔ ہم گلی گلی میں جائیں گے، ایک ایک ملازم کے گھر جائیں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے کہ خدارہ اپنی روٹی روزی چھت بچانے کے لیے باہر نکلو، پھر نہ کیا نہ خبر نہ ہوئی۔ یہ بتائیں سر، اسینشل کیٹیگری سے نکالا ہے اس کو، اور سے پہلے اسینشل میں بھی شامل جب ریلوے تھا تو پینشنز تو ریلوے خود ہی ادا کر رہا تھا، باقی وفاقی محکموں کی جو سب سے بڑا لاس ہوتا ہے نا علی، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیکنیکل بات ہے، اب انہوں نے کہنا کہ آپے کماؤ تو آپے کھاؤ،
वो उसका अभी रेलवे मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये बुनियादी वजह है। तो ट्रेनों की जो निजकारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो नाम दिया गया, 3 सिर्फ ट्रेनें गई हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, नहीं होगी इंशाल्लाह ताला इनकी निजकारी, इनसे नहीं होगी। एक आखिरी क्वेश्चन ये कहेंगे तो यूनियंस को एक पेज पे आना चाहिए। शेख साहब, आप सीनियर तरीन। जी, मैं इस कोशिश में हूँ। पिछले दिनों हमने पूरे मुल्क से अपने सदूर को बुलाया था, और हमारे चेयरमैन जो प्रेम यूनियन के हैं, जो ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब भी आए हुए थे, जो कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। उन्होंने इस सारे चीज़ के ऊपर, हमारी पहले यहाँ पर मीटिंग हुई है, फिर उन्होंने अमीर जमात को भी इत्मीनान में लिया है, ये सारे हालात उनको भी बताए गए हैं। इंशाअल्लाह हम टकराएंगे, हम पूरी कुव्वत से अपनी तमाम यूनियंस के, बल्कि आपके चैनल से मैं तमाम रेलवेज की यूनियन को दावत देता हूँ कि जनाब आप हम इकट्ठे, हमें चलना चाहिए। रेलवे के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, और इंशाअल्लाह हम अपने रेलवे मुलाजमीन को और बच्चों को मायूस नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ एक शहरी हैं जो टिकट लेने के लिए आए थे, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन चीज़ है कि 65 साल की उम्र में जो है मुसाफिर जो रेलवे का सफ़र करेगा, जो भी बुजुर्ग शहरी, उसकी टिकट आधी होगी, जबकि अगर जब एज उसकी 75 साल हो जाएगी तो वो टिकट को तकरीबन फ्री हो जाएगी। और मज़ीद जानते हैं इस शहरी से। जनाब, क्या हाल है, क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है। ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? जी अब्दुल्ला साहब, ये टिकट जो है जी, ये किसकी टिकट है? ये मेरी दादी है, वो कराची जाना है, उनसे लिए मैंने। तो दादी की कितनी उम्र है? दादी की उम्र है तकरीबन 76 साल है। 76 साल है। जी। तो उसकी काराकोरम पे जा रहे हैं ये तो? जी, काराकोरम पे जा रहे हैं। तो कितने पैसे दिए हैं जी? मैंने सिर्फ 5 रुपए दिए उनको। 5 रुपए में आपको सफर आपका ये बिल्कुल ही फ्री हो गया है। जी बिल्कुल। तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छे, बेहतरीन है। मतलब रेलवे ने जो निकाला बुजुर्गों के लिए, बहुत ही अच्छा है सफर। मतलब अच्छी है कॉम्बिनेशन इनकी, ये बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और मैं रेलवे को ये कहूँगा कि जी बाकी भी आम जो मुसाफिर हैं वो बेशक छोटी एज के ही हैं, तो उनको भी कोई इसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से रेलवे को सपोर्ट करने की अशद ज़रूरत है। बेल आउट पैकेज दिया जाए, और जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में रेलवे को डाला है उससे निकाल के एसेंशियल में डाला जाए। अगर इस तरह ही करेंगे तो ये ट्रैक भी ख़त्म हो जाएंगे और रेलवे भी बंद हो जाएगी। और ये गरीब बंदा जो आज सफ़र कर रहा है 5 रुपये में, 75 साल की उम्र से आगे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी ये सहूलत नहीं मिल सकेगी। इस हवाले से रेलवे इंतज़ामिया को होश के नाखून खुद भी लेने होंगे, अपने अखराजात कम करने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत वक्त को इस हवाले से यानी रेलवे को सपोर्ट करना चाहिए। रेलवे के जो मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनको वाजिबात की अदायगी करनी चाहिए। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, अहमद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुलाजमत भी रेलवे में करते हैं। हाँ जी अहमद साहब, गुजर बसर हो रहा है, महंगाई इतनी शदीद है? महंगाई बहुत सख्त है, बस धक्का स्टार्ट है, बहुत मुश्किल से हालात चलते हैं। हम घरेलू कर्जाई हो जाते हैं, एक से मांगो दूसरे से मांगो, ऐसे ही अपना वक्त गुजार रहे। बहुत मुश्किल है। बिल भी 2 महीने का बिल नहीं जमा करवा सके, उसका मीटर उतरने का भी खतरा है। अब किसी से कुछ कर्ज पकड़ा, कुछ अलग करे और किसी से जुगाड़ लग जाए। 30,000 तनख्वाह है। और किस तरीके को मिल जाती है? अक्सर 5-10 को आ जाती, कभी कभार लेट हो जाते, मगर फिक्स 5-10 को मिल जाती है। किराए का मकान है? मकान अपना है। 30,000 में किस तरह बजट बना? बस पार्ट टाइम भी मजदूरी वगैरह करते हैं, ईंटें उठाते हैं, छतों पे फेंकते हैं रसों के ज़रिए, या रेत वगैरह उठाते हैं वो ऊपर फेंकते हैं, वक्त को गुजार रहे हैं। तो मतलब रिजर्वेशन ऑफिस में टिकट कराने आए? नहीं, जॉब करते, अभी काम के सिलसिले में भेजा था, अभी एक काम पूरा नहीं हुआ, रास्ते से वापस बुलाया, आज फलाना चीज़ भी लेके जाना है, वो आप भूल गए। वो कहते हैं जी महंगाई कम होगी, या होगी कम? नहीं, महंगाई कम हो गई है तो फिर सऊदी अरब वाला सिस्टम, हम तो कहते हैं हमें परमानेंट सऊदीया भेजे, उधर फिर भी सही है। तो इसकी तनख्वाह उसकी तनख्वाह से बड़ा इजाफा है, उसकी वजह से हमारे डिप्लोमा कोई किया हुआ है जो आप कह रहे हैं सऊदी अरब के ख्वाब देख रहे हैं? डिप्लोमा की मसलन कि मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मगर इतना थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ, कुछ ना कुछ, इस वजह से कर लेंगे। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? महकमे की निजकारी होने जा रही है, उसको निजी शोबे के हवाले करेंगे। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये करप्शन ख़त्म की जाए। करप्शन बहुत आम है। लोया ले के सरकारी बेच दिया, खा लिया, पटरियाँ ले गए, बहुत हालात टाइट है। ख़ासतौर वर्कशॉपों में हमारे वालिद साहब भी ऐसे जॉब करते थे, तो उनको मकान के चक्कर में किसी दोस्त यार ने अकेले इकट्ठे बैठते उठते खाते पीते मकान के चक्कर में उसके साथ 35 लाख का नुकसान दिया। क्या वालदा के वालदा घर का सारा पेट वगैरह रास दे दिया,
उन्होंने जब देखा कि इसकी एज ज़्यादा है, उसके वालिद की 80 साल उम्र थी, वालिद साहब अभी 35 साल था, मकान के चक्कर में उन दोनों को देखा है तो फराड किया है, तो वो धोखाबाजी बहुत आम है। तो इसी लिहाजा सख्ती की जाए और चेंजिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई हम अच्छा होना चाहिए। समझते हैं कि करप्शन खात्मे की जड़, ये इस हर मुसीबत की जड़ करप्शन है और महंगाई है। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुस्तकिल जॉब है आपकी या आर्जी? अभी आर्जी है, रेगुलर नहीं किया है, डॉक्यूमेंट जमा। मुलाजमीन को तो काफ़ी निकाल भी दिया है रेलवे ने। नहीं, जो वालिद साहब की जगह है उनको नहीं निकाला है, वो मेडिकल केस पे हमें। क्या नाम है आपका? अहमद जुबानी। गुफ्तगू सुनी अहमद उस्मानी की और बड़ी मासूमियत से उन्होंने बताया कि जी 30,000 सैलरी है और 30,000 सैलरी में क्या कमाएंगे और मतलब क्या खाएंगे इसमें से। ये आप सोचने की बात है, समझने की बात है कि 30,000 में आम बंदे का बजट कैसे बनेगा। और ये ईंटें उठाने और पर मजबूर है, यानी कि ये मजदूरी भी काम करते हैं कि मतलब कहने का ख्वाब इन्होंने सऊदी अरब का देखा है कि सऊदी अरब में अगर मौका मिले तो चले जाएं। क्या पूरे पाकिस्तानियों को अच्छे रोज़गार के मौके पाकिस्तान में मैसर नहीं होंगे? जो ख्वाब देख रहे हैं सऊदी अरब जाने के लोग, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो दावा करती है कि महंगाई कम कर दी है हमने। महंगाई कहाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ जो ग्राउंड है ना, उसकी रियलिटीज़ तो यही है कि आम शहरियों के लिए महंगाई कम नहीं हुई, गरीब बंदे के लिए महंगाई कम नहीं हुई। इसको कम करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करने होंगे। सूद की शरह कम कर दी, अफरात ज़र की शरह कंट्रोल हो गई, तो ये मतलब कहने के ये महंगाई को ख़त्म करने का जवाब नहीं है। और ये कोई मतलब ये नहीं है, आम बंदे तो ये देखता है कि दूध अगर 190 रुपये है तो वो 190 है, ये नहीं हुआ कि 100 रुपये पे आ गया, 150 पे आ गया। दूध की और खाने पीने की चीज़ें कोई सस्ती नहीं हुई। इस हवाले से हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल इस्लाम साहब किधर जा रहे हैं? मैं जी जा रहा हूँ रानीपुर। टिकट मिल गई है? टिकट मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है। कौन सी ट्रेन पे जा रहे हैं? अवामी से मिली है। और माशाल्लाह उम्र कितनी है? मेरी जी उम्र है 75 साल की। तो आपको तो कंसेशन दी होगी उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। कितने की टिकट बनी? ये दिया जी हमारी मेरी 1200। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप? मतलब क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं? कुछ नहीं, कोई गुजर नहीं है, बस बच्चों के सिर पे हैं, बेटे हैं मेरे। क्या काम करते थे पहले आप? मैं कुछ काम करता था, बर्फ का काम करता था। उसके बाद काफ़ी टाइम जिंदगी अच्छी गुजर गई है? माशाल्लाह अच्छी गुजरी है। ये बताएं, जो इतनी बदतरीन महंगाई है उसमें आपने कभी जिंदगी में देखी है ऐसी महंगाई? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी नहीं देखी जितनी महंगाई इधर है। बहुत ही महंगाई है, गुजारा बड़ी मुश्किल। क्या नाम है जी आप? शहनाज इस्लाम। क्या कहेंगी शनाज? ये बिल बहुत तंग करते हैं, बिल बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल ना, बहुत महंगाई है, कुछ बता नहीं सकते। देखा कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है, जाहिर है खाने पीने सारी परेशानी। हम परेशानी नहीं में लेता, मैं परेशानी लेता, टेंशन नहीं लेते। हम क्या करें, टेंशन लेके ना चल नहीं सकते। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटे। बेटी नहीं। तो हुकूमत से क्या आप मुतालबा करेंगे, क्या पैगाम देंगे? हुकूमत ने यही मंगाया कि ये महंगाई और ये सब कुछ कम करें, बिल कम कर दें और महंगाई कम करें, बिल कम करें, और बस और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट तो कहती है हमने महंगाई की पर कंट्रोल कर लिया है। हमने कहाँ किया, कोई भी नहीं कर, तौबा करें, बिल्कुल नहीं, सब कुछ खत्म है। तो ये जो रीडिंग वाले हैं और ये पानी वाले हैं, ये बहुत ही आवाम को तंग करते हैं। कौन? बहुत तंग करते हैं, कितना भी कम इनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। ये मेरी आपकी बात है बस, क्योंकि ये जाते हैं आगे कुछ और भेज देते हैं, लिख के कुछ लेके जाते हैं, भेजते कुछ और है। जी हमारे साथ शहरी एक मौजूद हैं, टिकट लेने के लिए आए थे, फयाज अहमद साहब। फयाज साहब कहाँ जा रहे हैं? अपना हैदराबाद, लाहौर से हैदराबाद। कितने की बनी? ये बनी है 14,120 रुपए की। कितने लोग जा रहे हैं? 2 आदमी। कौन कौन जा रहे हैं? मियाँ बीबी। हाँ आप जा रहे हैं जी। और साथ बेगम जा रही है। हाँ। कितनी उम्र है आप? मेरी कोई 80 के करीब है। आपकी टिकट कैसे ये बन गई? 2 बंदों की टिकट कैसे बना दी उन्होंने? प्राइवेट है ना, ये एसी के लिए है। हाँ क्या रिटायर्ड हैं आप? जी, किस महकमे से? रेलवे से। तो रेलवे की सूरत इस टाइम बनी है, क्या कहते हैं? पर मैं एसी में
जाने चाहे। जो अब सूरत हाल महकमे की बनी हुई है, इंतहाई सूरत हाल ख़राब है, गाड़ियों की भी पोजीशन नज़र है, आप प्राइवेट ट्रेन पे जा रहे हैं वो ज़रा बेहतर है, महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है, कैसे गुजर बसर? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब मैं ये बता रहा 14,120 रुपये की टिकट बनी है 2 आदमी हैदराबाद के लिए। एसी क्लास में जा रहे हैं आप? हाँ एसी क्लास। ये सफ़र आरामदेह हो जाएगा? जी बिल्कुल। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि जो महंगाई की शरह कम करने के लिए हाँ क्या करना? महंगाई कम होनी चाहिए, हर चीज़ कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे ज़माने में तो 70 रुपये में तनख्वाह में मिलती थी और उसमें मिसालें आसानी से गुजारा होता था। इतनी चीज़ें सस्ती थी, चीज़ें ऑफर थी, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ऑफर थी, पर उसके बावजूद अब अब चीज़ें महंगी हो गई हैं। पैसे लोगों के पास हैं पर चीज़ें मुहैया नहीं है। वक़्त नहीं रही पैसे की बुकत। हाँ वक़्त नहीं रही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, आपके रेलवे की वो सूरत हाल है जो किसी दौर में हुआ करती थी? नहीं अब मिसालें जो अब क्या बताएं, ठीक है बेहतर है जो भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसफ भट्टी। आसिफ भट्टी साहब किधर जा रहे हैं? हमने 7 की टिकटें करानी है 45 ये मेले की, और 17 फरवरी को मेला है तो हमने 16 की टिकट करानी है, तो वो हमें बुकिंग जा रही है, सब हर पास से बुकिंग मिल रही है। 16 और 15 टिकट ही नहीं मिल रही। हर साल जाते हैं आप 7? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आदत है? मेरे भाई और मेरे वालिद साहब और मेरे चाचू बहुत पुराने जाने वाले हैं। मुझे 11 साल हो चुके हुए हैं और मौजूदा मैं 3 माह पहले होकर भी आया हूँ मैं, और फिर मेरा दिल कर रहा है मैं फिर जाऊँ। ये लड़के सारे जा रहे हैं, वहाँ आपको सुकून मिलता है, रूहानियत? बहुत सुकून मिलता है। जो मेरे काम आ रहे होते हैं मैं सरकार से जाकर कहता हूँ मेरे काम हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला से करा देते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पास से वो करा देते हैं। क्या काम करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हैं, फिर भी पुरसुकून है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सुकून तो सारी ज़िंदगी नहीं मिलना। जो महंगाई ने हमारे तो खिलाफ कर दिया हुआ ना, हमारी रोज़ाना की जंग चल रही है रोटी की, वो नहीं हो रही पूरी। वो रोटी की जंग नहीं मुकम्मल हो पा रही है। कभी ना कभी घर का बिल आ गया, कभी पानी का बिल आ गया, कभी अब गैस आती नहीं हो, गैस के पैसे हम फजूल दे रहे हैं, बिल के ना फजूल दे रहे हैं, वो हमारी गैस आती कोई नहीं। किराए का घर है? अपना घर नहीं, मेरा मकान अपना भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं, मकान। चिंची भी अपनी है? चिंची भी अपनी बनाई हुई है। तो कितना कमा लेते हैं? 1400-1500 लेकर जाता हूँ तो 2000 के खर्चे निकले होते हैं, और मौजूदा मैंने तंग होकर अपने बेटे को भी इस लाइन में डाल दिया, चल यार कार का निज़ाम तो ठीक हो। हुकूमत कहती महंगाई कम कर दी है। कहाँ कम की है, मेरे ख्याल में बढ़ती जा रही है, कोई हर शय बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, शाहीन कुरैशी, मैं कराची से आई हूँ। कराची से आए हैं, टिकट सफ़र कैसा रहा है? अब वापस जा रही हैं? जी हाँ, वापस जा रही हूँ 10 तारीख को। सफ़र आपका कैसा रहा है शाहीन साहब? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि टिकट के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, समझे। बहरहाल महंगाई का दौर है, क्या कर सकते हैं बेटा। तो ये बताएं कि गुजर बसर कैसे हो रही है? कराची में परमानेंट रह रहे हैं, इतना बड़ा शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं परमानेंट रह रही हूँ, गुजर बसर मेरी अच्छी हो रही है। मेरा शौहर मेरे बेटे गवर्नमेंट जॉब है, समझे, तो ठीक ठाक है। आपने कहा महंगाई बहुत है। महंगाई का तो हाल ही नहीं पूछो, यहाँ तो कराची से ज़्यादा महंगाई है, समझे। मैं तो इस दफ़ा आके खुद 1.5-2 लाख रुपया लाई हूँ, पता नहीं चला 15 दिन में, समझे, इतनी महंगाई है। हुकूमत कहती है महंगाई हमने ख़त्म कर दी, कम कर दी। गलत कहती है हुकूमत, जो है वो गलत कहती है। महंगाई कहीं से ख़त्म नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लाहौर में तो बहुत है महंगाई बेटा, बहुत। बिजली के बिल और ये बिजली के बिल भी उनके, मेरी बहन के इतने आ रहे हैं, 10-10 हज़ार के, 12-12 हज़ार के उनके बिलें आ रहे हैं। किसी चीज़ में मुझे नहीं लगता कि कम हुए हैं, मुझे नहीं लगता, समझे। आटा वही है, गरीब आदमी रोटी भी नहीं खाएगा क्या? सालन ना पकाए चलो किसी से भी खा ले, रोटी तो चाहिए ना उसको। काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं मेरे भांजे, तो बस क्या कर सकते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से यही है कि मेहरबानी करें, कुछ अनाज पे, कुछ इस पे कम करें, ताकि गरीब जो इंसान है पेट भर के रोटी तो खा ले। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, टिकट कराने के लिए रिजर्वेशन ऑफिस आए थे, मजीद जानते हैं। जी नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम गुलाम हसनैन है। गुलाम हसनैन किधर? रावलपिंडी से।
रावलपिंडी से वापस जा रहे हैं? जी वापस जा रहे हैं जी। कैसा सफर रहा है रेलवे का, ट्रेन? तो बहुत अच्छा है रेलवे का, अगर इनका एसी का हो या पार्लर वगैरह का हो अच्छा हो। बाकी इकानमी का जो है ना वो उसमें हम नहीं उसको एडजस्ट कर, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जानवरों के लिए जगह है। ऐसे ही है। इसका पार्लर ठीक है और जो है ना एसी स्टैंडर्ड्स का ये। काम तो क्या करते हैं? मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ। रेलवे से ही? नहीं रेलवे से नहीं हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। गुजर बसर पेंशन पे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन। तो पेंशन भी आगे जो फ्यूचर में जो रिटायर लोग होंगे, अभी तो जो नहीं पहुंच आएगी उनको पेंशन से महरूम किया जा रहा है। सही, लेकिन उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ बेहतर ही हुआ है, लेकिन आगे हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो। तो कैसे महंगाई को कम किया जाए? जो इस टाइम आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जो भी हुकूमत आती है वो जनाब महंगाई का रोना रोते हैं लोग, लेकिन महंगाई खत्म नहीं होती। महंगाई तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर रही। वजह क्या है? वजह फिर देखें गरीब आवाम पे जो भी बोझ है वो गरीब आवाम पे पड़ता है। ये देखें कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हमारे लोग हैं उनकी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर दिया है। ये उनकी जब ये गवर्नमेंट खुद कह रही है महंगाई हमने ख़त्म कर दी है, कम कर दी है, तो फिर उनकी तनख्वाहों में क्यों इजाफा, इतनी मराद में इजाफा? यही चीज़ हम कह रहे हैं भाई, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है और जो तनख्वाह की ज़रूरत नहीं। तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें जैसे पंजाब असम्बली की तनख्वाहें माशाल्लाह इनकी ठीक ठाक इन्होंने बढ़ा दी हैं, ठीक है। बाकी जो वफाक के हैं या पंजाब हुकूमत जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह इनको बढ़ानी चाहिए, पेंशन बढ़ानी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। वफाक के और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर वाले उनकी तो सैलरी से नहीं बढ़ती। उनकी सैलरी से उनका भी कम से कम देखें, अभी 30-35 हज़ार जो बंदा ले रहा है वो कैसे गुजर बसर करेगा? मकान किराया देगा, खाना पीना करेगा या बच्चों की फीसें देगा, क्या करेगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद सुहेल हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब किधर जा रहे हैं? मैं कराची। कराची जा रहे हैं। सफ़र कैसा रहा? आप वापस जा रहे हैं? आने में भी अच्छा रहा, अभी जाने में अल्लाह मालिक है। टिकट ले रहे हैं? जी टिकट ले रहा हूँ। क्या महंगाई की पोजीशन कराची में है? जो लाहौर में तो आपने देख लिया जो सूरत चल रहा है। नहीं सब सही है, सब सही है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्या काम क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम सही चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से। चीज़ है कि जी एक नाज़रीन वाहिद ये मोहम्मद हुसैन साहब मिले हैं और इन्होंने इसका इकरार किया है कि जी महंगाई का कोई मसला नहीं, उनका काम चल रहा है। क्या कब से कर रहे हैं प्रॉपर्टी का काम? तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ कराची में। तो कितना कमा लेते हैं? माना ये अल्लाह का शुक्र है, 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं। घर बेचते हैं? हाँ, घर हो गए, प्लाट हो गए, इनकी खरीदों फरोख्त करता हूँ। जो लोग परेशान हैं महंगाई का कह के, अभी आपसे पहले भी हमने बड़ी साथियों से गुफ्तगू की, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आम शहरी जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर महंगाई होती ना तो हर आदमी मोबाइल अपने पास नहीं रखता, अपने पास बैग नहीं रखता। हर आदमी के पास बैग भी है, मोबाइल भी है। मोबाइल के कितने खर्चे आते हैं, नहीं संभाल करो, बैग नहीं संभाल करो, कोई मसला नहीं, परेशानी कोई भी नहीं। बस ये नाशुक्री है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, यहाँ पे बंदा भूखा सो नहीं सकता है, न भूखा उठ सकता है। अल्लाह का बहुत करम है, खाली हम लोग नाशुक्र हैं, खाली ऐसी परेशान होते हैं, ये हो गया वो गया, कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक रोजी देते हैं। उन शहरियों से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे जो महंगाई की वजह से परेशान है? नहीं परेशान हो, अल्लाह पे सारा छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर सारा करने वाला अल्लाह पाक है, ठीक है। अल्लाह पाक करने वाला है, इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह के ऊपर छोड़ो, अल्लाह से मांगो, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं। आ जाए, क्या नाम है आपका? दिलदार दिलदार जी। दिलदार साहब आप भी कराची से आए? जी मैं लाहौर का। क्या सूरत हाल चल रही है? बस महंगाई के करके बड़ा तंग होता है और कोई बात नहीं। क्या काम करते हैं? और मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चला रहे हैं जी। अच्छा ये बताएं गुजर बसर कितना हो रहा है, कितना कमा? लाख लाख शुक्र गुजारा मुजारा हो रहा है। महंगाई तो सारी दुनिया को साथ ही है जी। पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े? हम पढ़े लिखे नहीं है, शुरू से काम भी किए। अच्छा, कितने बच्चे हैं? शादीशुदा? जी, बच्चा कोई नहीं है अभी। कभी महंगाई की इतनी परेशानी नहीं आपको हो रही? परेशानी तो इतनी नहीं है, चलो अल्लाह का गुजारा हो रहा है।
क्या रिजर्वेशन ऑफिस में के टिकट कराने आए? जी ये भाई के सारे टिकटें कराने आए हैं कराची की। लोग परेशान हैं महंगाई से, उनको परेशान भी हैं भाई, हम से चलो रक्षा 1000 ले आए 1200 ले आए, हम गुजारा चलाते हैं। लोग कमाते हो खा लेते जी भाई रोजी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद कासिम नाम है। तो कासिम भाई कहाँ जा रहे हैं? ये हम यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, रावलपिंडी चिकलाला स्टेशन। तो ऑनलाइन का मसला बहुत चल रहा है, ऑनलाइन जो है ना वो नहीं हो रही, क्योंकि हमने रात को भी ट्राई करते हैं ना OTP आता है, और फिर नेट भी बड़ा स्लो है और इनका सिस्टम भी बड़ा स्लो है। हाँ नेट भी है, लेकिन ये मसला जो है ना इनके ऑनलाइन नहीं होती, नई ID बनाएं तब भी नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे स्पेशल आना पड़ा है 1 घंटे की ड्राइव करके। कहाँ से आए हैं आप? वो आखिर से जलो मोड़ से। चलो मोड़ से आए हैं, क्या काम करते हैं? जी मैं यहाँ नहीं, बाहर से हूँ, सऊदीया से। हाँ जी, वापस जा रहे हैं सऊदीया? वापस अभी तो जो घर है हमारा बेसिकली वो यहाँ पे है। क्या करते हैं सऊदीया में? सऊदीया में टेलीकॉम के शोबे में, टेली कम्युनिकेशन के सही हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। है। इधर लोग बहुत परेशान हैं अब महंगाई की वजह से। मैंने अभी लोगों से गुफ्तगू की है और कुछ लोग मिले कि वो कहते हैं हम बाहर भी जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपके पास रियाल हैं, आप सुकून में हैं, आपको मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आम शहरी तो इधर तो बड़ी सख्त परेशानी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुजारा है, लेकिन ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। बाहर वाली तो हमें तो मुश्किल आ रही है, तो यहाँ जो है वो उनका क्या हाल है? हमें मुश्किल, वो चेंज करवाते हैं पता ही नहीं चलता। 5000 की अब वैल्यू जो है ना 1000 रुपये के बराबर हो चुकी है, 1000 से भी नीचे चली गई है, 500 के बराबर हो गई है। तो मुश्किलात तो हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? यही निज़ाम को बेहतर करने के लिए वही बात आ जाती है कि जब मैंडेट जो है ना वो ही नहीं है इस हुकूमत के पास, तो क्या करेंगे? ये सारा मसला ही जो है ना, ये करप्शन हर जगह घुसी हुई है। तो अब हम उधर का जब देखते हैं वहाँ उस मुल्क में और इस अपने मुल्क में तो बहुत ज़मीन आसमान के कानून ही वहाँ पे इतने सख्त है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही तो अब मॉडर्न बनता जा रहा है जी। वो तो और ट्रेन हर चीज़ वहाँ भी चल गई है, मेट्रो ट्रेन है उनकी, सब चीज़ें चल गई हैं, लेकिन उनका निज़ाम है जी, ऑनलाइन हर चीज़ होती है। यहाँ पे ऑनलाइन में मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। क्या नाम है आपका? फिजान जुबैर, सुबह कहाँ जा रहे हैं फिजान? मुल्तान जा रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? जी फर्स्ट ईयर में मैं। जी अच्छा फिजान ये बताएं, जो इस तरह हालात बने हैं मुल्क के, माशी हालात भी बड़े अजीबोगरीब हैं इस टाइम, कैसे हालात बेहतर बनाए जाए? सर जी यही कह सकते हैं कि सारों को एक होकर काम करना चाहिए। जिस तरह की मुख्तलिफ पार्टियां बनी हुई हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, क्योंकि एक साथ चलें सबको, एक मुल्क एक है तो पार्टियां भी एक होनी चाहिए। अब जिस तरह कि आप देख लेना, कोई कह रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा चला सकता हूँ, मुल्क कोई कह रहा है मैं ज़्यादा अच्छा चला सकता हूँ। जो मुल्क अच्छा चलाना चाहता है उसको काले डाले पड़ जाते हैं, उसके घर के बाहर काले डाले, वो जेलों में चले जाता है, गैब हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई सही है कोई नहीं सही, और ज़्यादातर हम खुश कर सकते हैं, हम एक आम बंदा भी खुद भी सही चला सकता है मुल्क, लेकिन मुश्किल ही है मुल्क ठीक चले। आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान से बाहर नजर आ रहे हैं हमें, या पाकिस्तान में? मैं बाहर ही नज़र आऊँगा। किधर जाना चाहते? मैं दुबई जाऊँगा। पाकिस्तान क्यों नहीं? सर इधर है कि मतलब कि भूखे ही मरना है ना। मेरे अपने वालिद का काम है, तकरीबन वो 16-17 साल से काम कर रहे हैं AC फ्रिज का। तो पहले बहुत काम होता था, लेकिन अब उनका इतना काम नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने पड़ रहे हैं। और ये है कि उनका कारोबार भी इधर नहीं सही चल पा रहा है, कोई काम कराता है, कोई बीच में से घपला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत मसले मसाइल होते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ना इधर कोई स्कोप नज़र आ रहा है। जब तक आपके पास कोई बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मतलब कि अगर पैसे नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे नहीं जा सकते। ये लाइन में आगे जाएंगे? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जी, IT से रिलेटेड। पाकिस्तान में मुस्तकबिल है IT का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करते? सर जी वो तो है, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो ज़्यादा सारे चाहिए ना। जिस बंदे के पास पैसे नहीं वो कैसे आगे जाएगा? अब वो जो एक आम बंदा है, वो उसके पास इतनी नहीं है स्ट्रेंथ कि वो क्या नाम है इतने पैसे इतनी फीसिस अफोर्ड कर सके, तो वो कैसे IT में आगे चल जाएगा? और आगे तो वो लोग जा रहे हैं ना जिनके माँ बाप का पैसा ज़्यादा और वो लोग पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं। कितने बहन भाई हो आप? हम 3 भाई हैं, सिर्फ 3 भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आप बड़े भाई के लिए आपके लिए फ़र्ज होगा कि आप खुद जाएंगे तो उनके लिए भी करेंगे? हाँ जी, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना आपको भी स्टैंड करूँ, ताकि मैं अपने दोनों छोटे भाइयों को भी उनका भी मुस्तकबिल अच्छा कर सकूँ। कब तक जाएंगे? इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए जिस तरह ही पढ़ाई, ये 3-3.5 साल तक इंशाल्लाह कंप्लीट। मुल्क को बेहतर करने के लिए क्या आप तजवीज़ करेंगे? मुल्क को यही तजवीज़ करूँगा कि सारे मतलब कि सर क्या है, कुछ नहीं सकते, मैं
एक का होके काम किया जाए, मतलब कि सब एक होके सही तरह अपने मुल्क को चलाएं, ना कि अपना फ़ायदा सोचें। हर जगह आप ये सोचते हो कि जी हमारा हो जाए, दूसरे का ना हो, और अपना ना सोचें, मुल्क का सोचें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि इस्लाम की बुनियाद पर चले, जो कि आजकल नहीं चल रहा। बस ये बात है कि इस्लाम की बुनियाद पर मुल्क चलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस तरह आगे सारे जा रहे हैं, इस तरह हम भी जा सकते हैं, और जो हमारी आवाम है वो भी कोऑपरेट करे और हुक्मरान भी कोऑपरेट करें, मुल्क चल जाएगा। रेलवे का सफ़र कैसा है? रेलवे का सफ़र अच्छा है, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो अच्छा, हमें तो मज़ा आता है, हमारी पूरी फैमिली जाती है। किधर जा रहे हैं? हम मुल्तान जा रहे हैं, हमारी खाला का घर है वहाँ पे, तो अच्छी वेकेशंस के लिए के लिए जा रहे हैं। सफ़र रेलवे का अच्छा है, आरामदेह है? आरामदेह है। हम लोग हमारे तो जो बैकग्राउंड भी वो भी रेलवे से रिलेटेड है। मेरे नाना अबू और मेरे मामू वगैरह सारे रेलवे से रिलेटेड करते हैं, मतलब रिटायर्ड हुए हैं यहाँ से, तो हमारा तो रेलवे से ही सफ़र है और मज़ा आता है, हम लोगों को इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया। फैज़ान की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने रेलवे के सफ़र को आरामदेह करार दिया है। दूसरा, मायूसी का इज़हार किया है कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, और उन्होंने कहा कि वो दुबई या बैरून मुल्क किसी और मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। और वालिद साहब का उन्होंने जो काम बताया है, उन्होंने कहा जी वो भी इतना नहीं चल रहा, और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना होगा, यूनाइटेड हो के मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रिजर्वेशन करवाने आए थे। जनाब, नाम क्या है और ये टिकटें किसकी करवाई? मेरा नाम अब्दुल नजीब है और ये मेरे वालिद साहब की हैं टिकटें। इनको कैंसिल करवा के म्यूचुअली डेट चेंज करवानी है, तो अभी कराची जा रहे हैं? जी, कराची के लिए चेंज करवा दी। मेरी वालिदा की और वालिद की हैं ये, तो उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल नजीब है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल गनी है जी। क्या काम करते हैं मजीद साहब? मैं तो अभी फारिग हूँ, काफ़ी अरसे से कोई काम नहीं है, तो बेरोज़गारी बहुत आम हुई है, कोई काम नहीं चल रहा, तो बेरोज़गार हैं आप? जी हाँ, तकरीबन। घर अपना है, किराए का? नहीं, घर अपना है तो घर को थोड़ी चाटना है, खानी तो रोटी है ना, तो घर को क्या करेंगे, ईंटें चाटेंगे? नहीं, किराए से, मैं तो किराए के वाले से पूछ रहा हूँ ना, किराया जो है ना आपका। स्टेटमेंट ले रहे हैं ना, तो मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी से मैं बात सही कर रहा हूँ कि दीवारों को नहीं खाना। क्या काम करते रहे हैं? मैं वैसे कराची बंदरगाह से रिटायर हूँ, KPT से, और वहाँ पर जो है ना गोल्डन शेक के ज़रिए फारिग हुआ था, तो मतलब कुछ उन्होंने बेनिफिट इतना कुछ अच्छा नहीं दिया, ना कोई उन्होंने मतलब कोई बच्चे को अपॉइंटमेंट दी है, ना कोई तरीका कार है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी से बस ऐसा सिलसिला, अल्लाह रिज़्क़ चलाने वाला है, अल्लाह ताला। और नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मजीद साहब की, और आप जिस तरीके से इन्होंने बताया, मायूसी का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कहा जी महकमे में करप्शन बहुत, महकमों में करप्शन बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा करप्शन उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में करप्शन है। करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे। इनके पास पाकिस्तान के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, और मसाइल की भी कमी नहीं है। मसाइल और वसाइल दोनों मौजूद हैं। अब ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह उन वसाइल को इस्तेमाल करके मसाइल को, जो शहरियों के मसाइल हैं, गरीब लोगों के मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसाइल जो मसला है वो महंगाई का है, बेरोज़गारी का है। इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दाम करने के चाहिए। अपने ज़ाती मफादात के लिए सियासत करने के बजाय कौमी मफाद में सियासत को तरजीह देनी होगी। और नया साल आ चुका है, नए साल में नई उम्मीदें हैं, और हम ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान मायूसी के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, और उम्मीद करते हैं कि 2025 पाकिस्तान के लिए सुबह होगी, और तरीक रातें गुजर चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अली फारूक को, कैमरामैन रईस शाह के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।